اس کی بات پر وہ دلچسپی سے آگے کو ہوا۔ اور کیا ہے وہ کہانی؟ ولی کی مسکراہٹ بس ایک لمحے کو گہری ہوئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو ہاشم کہ تم بھی میرے جیسے ہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے پیچھے کو ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اور میں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہر لفظ پر زور دے کر کہتا وہ اسے تیش دلا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس میں بکواس کچھ بھی نہیں ہے ہاشم۔ سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک ناجائز بچے کی کہانی، ایک ایسے بچے کی کہانی جو حرام رشتوں سے وجود میں آیا تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جو معاشرے کا زہر آلود سا حصہ تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جو لوگوں کی بے جا گالیاں سنتا بڑا ہوا تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جس نے ظلم کی ہر انتہا کو دیکھ کر خود کو ظالم اور مظلوم کی دائروں سے آزاد کیا تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی کہ جس نے ہر اس جرم کی سزا کاٹی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور وہ بچہ ولی احمد تھا۔ اسی لیے تو تم اور میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں حلال ہوں اور تم ولی، تم حرام ہو۔ آفس میں یکدم موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، سب کچھ ساکت ہو گیا، ہر شے، ہر سانس اور ہر جنبش۔ ولی مسکرا کر آگے کو ہوا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی نسواری آنکھوں کے کانچ گاڑے۔ لیکن وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا ہاشم۔ ہاشم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ولی احمد نہیں تھا، ہاشم کا وجود پل بھر کو برف بن گیا، برف کا سفید ڈھیر۔ تم بھی میرے جیسے ہی ہو، کیونکہ تم بھی میری طرح ناجائز ہو۔ کیا تم نے کبھی روح قبض کی جانے کی آواز سنی ہے؟ وہ بھی اتنی ہی بھیانک ہوتی ہے، اتنی ہی دل خراش، اتنی ہی بے رحم۔ ہاشم بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس پر سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ مجھ پر ساری زندگی تم نے ظلم اس لیے کیا کیونکہ میں ناجائز تھا، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں ہاشم کہ تم خود کیا ہو؟ تم بھی ایک حرام زادے ہو، تم بھی حرام تسکین کا نتیجہ ہو ہاشم، اور تم بھی میرے جیسے ہی ہو۔ ولی یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن ہاشم اپنی جگہ سے نہ ہلا، لگتا تھا جیسے ساری دنیا راکھ کا ڈھیر بن گئی ہو۔ اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو جا کر اپنے اس باپ سے پوچھنا، لیکن ایک منٹ۔ اس کے ٹیبل پر ہاتھ رکھتا وہ اس کے سامنے جھکا، گلابی آنکھوں سے اس کا سفید پڑتا وجود دیکھا۔ تمہارا باپ تو اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں پا کر لاغر ہو چکا ہے۔ تم یہ سب اپنی اس نقلی ماں سے پوچھنا کہ جس نے ساری زندگی تمہیں اپنا سگا بیٹا ماننے کا دعویٰ کیا ہے، اور آج اس وقت اس تاریخ میں تم بھی جی کر دیکھو ایک ناجائز اور حرام اولاد کی حیثیت سے، اور اندازہ کرو کہ ولی احمد نے ہر گزرتے دن کس اذیت کو کاٹا ہے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ سیدھا ہوا اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا، اس پر ایک پھنکارتی ہوئی نگاہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے ہاشم حسین کو آج زندگی کا سب سے بڑا عذاب دیا تھا، ایک ایسا عذاب جس سے وہ خود کو آزاد کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس نے اس کی ذات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا، اس نے ہاشم حسین کو آج تباہ کر دیا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے بجتا فون اس نے نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کار ریسیو کر کے چلتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ کرتارپور والے کب تک آئیں گے محسن؟ بس آج شام۔ ولی سر، گڈ، اس نے بے تاثر سا کہا اور پھر پلٹ کر ایک نگاہ اس کے ڈیرے پر ڈالی۔ آج سے تمہارا باپ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہاشم۔ اس نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سیاہی میں ڈوبے ڈیرے کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ واپسی پر اس کی کار کا رخ قبرستان کی جانب تھا، اس قبرستان کی جانب جس میں اس نے اپنے ہاتھوں سے کرم کو دفنایا تھا۔ ایک پل کو اس نے گہرا سانس لیا اور پھر مغرب کی گہری ہوتی سیاہی میں ڈوبے قبرستان کو دیکھا۔ اگلے لمحے اب وہ بیشتر قبروں کے پاس سے گزرتا کرم کی تازہ قبر کے سامنے موجود تھا۔ قبرستان میں آج مردوں کے رونے کی آوازیں محفوظ تھیں۔ شام کی سیاہی میں ڈوبا قبرستان آج اسے بے حد پرسکون لگا تھا۔ وہ چند پل خالی نظروں سے اس کی تازہ قبر پر مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھے گیا، پھر آہستہ سے گھٹنوں کے بل اس کی قبر کے سامنے بیٹھا۔ دور سے دیکھنے پر بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ ایک اونچا سا لڑکا سر جھکائے کسی قبر پر بیٹھا ہے، روشن پرسکون اور آرامدہ سی قبر پر۔ ہاشم تابڑ توڑ گھر کے اندر داخل ہوا تھا، دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا، لیکن لاؤنج زرد کمکمہ میں سنسان لگ رہا تھا۔ خالی پڑے لاؤنج کو دیکھ کر وہ اوپر کی جانب بھاگا۔ اس کے قدم جو کبھی بھی لڑکھڑایا نہیں کرتے تھے آج کانپ رہے تھے۔ ایک انجانا سا خوف تھا جو اس کے گرد حصار کھینچنے لگا تھا، اور اس حصار میں اس کا دم چند ہی گھنٹوں میں گھٹنے لگا تھا۔ حسین کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر وہ چند لمحے سرخ نگاہیں لیے اس لاغر سے ناکارہ وجود کو دیکھے گیا۔ نگار جو اس کے یوں آنن فانن آنے پر بے ساختہ مڑی تھی، اس کی خون آشام نظروں کو دیکھ کر ناسمجھی سے اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں دونوں کندھوں سے تھاما
और बुरी तरह झंझोड़ा। एक माँ जी, मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा तुमसे, मुझे झूठ बोलने की गलती मत करना, मुझे सच सच बताना। निगार खौफजदा होकर इसका स्याह पड़ता चेहरा देख रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में से क्या हो गया। क्या तू मेरी सगी माँ है? और निगार की निगाहें फटकर बाहर आ गई। धड़कते दिल और फूलते सांस के साथ वो इसे देख रही थी, जो इनके हाशिम से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। हाँ, वो इनका हाशिम लग ही नहीं रहा था, वो तो कोई बदला हुआ इंसान लग रहा था, और एक ऐसा इंसान जो सब कुछ था मगर इनका हाशिम नहीं था। मैंने पूछा, क्या मैं तेरा सगा बेटा हूँ या नहीं? वो इतनी जोर से चीखा था कि सारी हवेली लर्ज उठी। दरो दीवार इसकी दीवानगी पर कांप उठे थे। निगार बेगम का सारा जिस्म पसीने में नहा गया। बोलने की कोशिश की, लेकिन होठों की बेतहाशा लर्जिश पर कोई भी लफ्ज लबों से निकलने से इनकारी हो गया। सब कुछ खत्म हो रहा था, खत्म होता जा रहा था। हाशिम, लेकिन इसने इन्हें जोर से एक तरफ को धकेल दिया था। वो फिसलती हुई कमरे में रखे टेबल से जा लगी। माथे से खून की पतली सी लकीर फूटकर अब चेहरे पर लुढ़क रही थी। हाशिम परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और हुसैन के लागर पड़े वजूद को बुरी तरह झंझोड़ा। क्या मैं नाजायज हूँ? बोलो बाबा, क्या मैं नाजायज हूँ? कह दो कि ऐसा कुछ नहीं है। बोल दो बस एक बार कि मैं तुम्हारा नाजायज बेटा हूँ। खुदा के लिए बस एक बार मुझे बता दो कि वो वली झूठ बोलकर गया है। मैं जायज़ हूँ। मैं कभी इस जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मैं इस जैसा। मैं और वो एक से नहीं है। वो मुझसे कमतर है और वो मुझसे हर लिहाज में कमतर है। इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। बोलो, एक दफ़ा बोलो बाबा, बस एक दफ़ा ऐसे बोल दो। लेकिन हुसैन के हलक से सिवाय बेमायने आवाज़ों के और कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हलक से गौर करती आवाज़ों के सिवा और कुछ न निकला। इसने यकदम तैश में आकर जोर से इसे बेड पर फेंका तो वो लुढ़क कर एक जानिब को गिरा। निगार भागकर इसकी तरफ आई थी, इसे सीधा किया और हाशिम को देखा। इसका चेहरा मुर्दा हो रहा था, यूं लगा जैसे वो गल सड़ रहा हो। कदम कदम पीछे जाते वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, बस एक ही जुमला कि वो वली जैसा नहीं हो सकता, वो इस जैसा कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन इसके बोलने से अब किसी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। जो तय हो गया था वो तय हो गया था। इंसानों पर सारी जिंदगी जुल्म करते इसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा, इतना खौफनाक और इतना तारीफ। लेकिन अब इसे अंदाजा हो रहा था कि वली जो भी बोलकर गया था वो सब सच था। इसे सच के अजाब में डालकर वो तो पलट गया, मगर जिंदगी के एक ना खत्म होने वाले अजाब के हवाले से कर गया। चंद घंटे, महज चंद घंटे हुए थे इसे ये जाने कि वो नाजायज था, वो एक हरामजादा था, और इन चंद घंटों में गोया इसने सदियों की अजियत खुद पर गुजार ली थी। वली अहमद सही कहता था, ठीक कहता था वो बिल्कुल, कि वो जो बर्दाश्त करता आया है, अब इस सब को बर्दाश्त करने की बारी हाशिम की थी। इस पागल कर देने वाले सच को झेलने की बारी अब इसकी थी। अपनी हवेली से बाहर भागते हुए इसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ को जा रहा है, किस सिमत में भाग रहा है। इसे बस भाग जाना था, किसी जंगल या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ कभी भी रोशनी का कोई अंधिया ना होता, जहाँ रोशनी का कोई वजूद ना होता, जहाँ सिर्फ स्याही होती, गहरी स्याही, ऐसी स्याही जिसमें खुद से भी नजर ना मिला सकता। अच्छा, तो ये होता है इंतकाम। इसे कहते हैं इंतकाम। इसे कहते हैं वक्त के दायरों का उल्टी तरफ घूमना। इसे कहते हैं अमाल का पलट आना, जुल्म का लौट आना। इसने लोगों पर बहुत जुल्म किए थे, बहुत सी इज्जतें पामाल की थी, बहुत सी जानें मौत के घाट उतारी थी। इसने दौलत और ताकत के नशे में हर गैर इंसानी हरकत की थी। लेकिन ये खुदा की दुनिया है, यहाँ इसका कानून चलता है, यहाँ इसकी हुक्मरानी जिंदा रहती है। ढील देने पर अगर वो बहुत से फिरौनों को इस जमीन की बादशाही सौंप दे, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो लगामें ढीली करके भूल गया है। सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे आसमान और सारी ज़मीनें जुल्म को भूल सकती हैं, मगर अल्लाह जुल्म को कभी नहीं भूला करता। इस ज़मीन पर मौजूद हर फिरौन को एक ना एक दिन गर्क होना ही होता है। इसे भी गर्क होना था अपनी स्याहकारियों और बदकारियों के साथ। आज इसे भी किसी समुद्र में गर्क हो जाना था, क्योंकि गर्क हो जाना ही हर फिरौन का आगाज भी था और अंजाम भी। भागते भागते वो किसी गाड़ी से बुरी तरह टकराकर नीचे गिरा। वो एक बहुत लशपश चमचमाती हुई कार थी। इसमें इतनी सिकत नहीं थी कि उठकर मजीद भाग सकता, इसीलिए खामोशी से पड़ा रहा। चंद आदमियों ने बाहर निकलकर इसे सीधा किया था, फिर इसके चेहरे पर टार्च मारकर देखी तो एक दूसरे को इशारा किया। वो सब अभी इसी के घर में घुसकर इसे घसीटते हुए बाहर निकालने का इरादा रखते थे।
लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि वो इन्हें बाहर मिल गया था। इसे घसीटकर वो गाड़ी में डालने लगे तो हाशिम ने पसोपेश से अपने बाजू हिलाने चाहे। इनमें से किसी एक ने इसकी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नार रखी तो वो सुन्न हो गया। चुपचाप गाड़ी में बैठ, अभी के अभी। इसने थूक निगल कर तेज तेज सर हिलाया था। असाब तो गोया मंजमद ही थे, लेकिन अब इसका जिस्म भी जमने लगा था। इन्होंने इसे गाड़ी में ठूसा और फिर तेजी से गाड़ी आगे भगा ले गई। आज हाशिम हुसैन ने जिंदगी की आखिरी शाम आखिरी बार देखी थी। कुछ दूर ले जाकर गाड़ी रोकी गई और इसे गांव के आखिरी सिरे पर बहती नहर के करीब उतारा गया। एक आदमी ने आगे बढ़कर इसके चेहरे पर स्याह कपड़ा डाला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फांसी देते वक्त मुजरिम के चेहरे पर डाला जाता है। इसको पीछे को बंधे हाथ पूरी तरह से काबू थे और वो सफेद चेहरा लिए खामोशी से इन सब की कार्रवाइयां देख रहा था। किसके लोग हो तुम? हिम्मत करके इसने पूछा तो इसके कंधों पर जोर डालकर इसे घुटनों के बल कच्ची जमीन पर बिठाया गया। क्या तुम्हें याद है कि करतारपुर वाले सिखों की बेटी का तुमने इस साल की कौन सी शब को किया था और फिर इस लड़की को मारकर तुमने इस तरह किसी बहती नहर में डाल दिया था? लेकिन हाशिम हुसैन, वो लड़की जिंदा बच गई थी। इस लड़की का बिस्तरे मरग के आखिरी लफ्ज थे कि इसे हाशिम हुसैन ने दरिंदगी का निशाना बनाया है। आज और इस वक्त तुम्हें इसी का बदला लौटाया जा रहा है। इसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। पल भर में जैसे सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था। वक्त अब थम चुका था। इसके सामने खड़े आदमी ने पिस्तौल लोड किया तो इसने आंखें बंद कर ली। वली इसी पल कब्रिस्तान से निकला था, कंधों पर धरी भूरी शाल को दुरुस्त करता, स्पाट चेहरा और खाली वजूद लिए। एक गोली फिजा में तैरती आई और हाशिम के दिल में पेवस्त हो गई। फिर दूसरी, तीसरी, और जब तक आगे वाले के पिस्तौल में गोलियां खत्म नहीं हो गईं, तब तक इसका वजूद गोलियों से छलनी होता रहा। वली की गाड़ी कच्चे रास्तों पर एक बार फिर से दौड़ रही थी। इसके अंदर खुशी का कोई एहसास नहीं था, सरशारी की कोई कैफियत नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे इसका वजूद खिल उठता, क्योंकि वो जानता था कि इंतकाम खुशी नहीं दिया करता, बस एक तस्कीन होती है जो रगों में बहते लहू को सर्द करती उतरती जाती। इसका झटके खाता जिस्म जैसे ही साकित हुआ, इन्होंने इसे लात मारकर नहर के मुंह और पानी में फेंक दिया। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। इसकी खून से लथपथ लाश लावारसों की तरह आगे ही आगे बहती जा रही थी। दूसरों को कुत्ते की मौत देने वाला आज खुद ऐसी मौत मर गया था कि जिससे जिस्म का हर अज़ू कांप उठता। एक ऐसी अज़ियत से मरा था कि सुनने वालों के दिल बंद होने का खदशा लगता था। कुदरत का इंतकाम इतना ही जालिम और कड़ा हुआ करता है। मरते वक्त इसने आखिरी बात यही सोची थी। हाँ, एक आखिरी बात जो हर इंसान लुक़्मा अजल बनते हुए सोचा करता है, एक ऐसी बात जो इसकी सारी जिंदगी का अक्स होती है। वली ने गाड़ी सफेद हवेली के सामने रोकी और खामोशी से बाहर निकल आया। आज बहुत सी जानों का बदला पूरा हो गया था। आज बहुत से हिसाब चुकता हो गए थे। आज बहुत सी कब्रों से आने वाले बैन की आवाजें बंद होने वाली थी और आज बहुत से मुर्दार अपना रिज़्क समेटने वाले थे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो चौंक कर रुक गया। ज़मान लाउंज में बैठे थे और साथ ही बीजान परेशानी से शायद इसी का इंतजार कर रही थी। इसे देखते ही वो यकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इसने ज़मान को देखा, मगर इनके बेतासुर चेहरे का हर तासुर इसे समझ आता था, तो नवाज से सब्र नहीं हुआ। इसने गहरा सांस लिया और फिर लाउंज ही में चला आया। बीजान बेसब्री से इसकी जानिब बढ़ी। वली, ये नवाज क्या कह रहा है कि तुम जा रहे हो? झूठ कह रहा है ना वो? तुम तो कहीं नहीं जा रहे ना? इसका चेहरा जांचते जैसे बहुत से सवालात कर रही थी, कांपते दिल के साथ। वो अगर चला गया तो लगता था ज़मानी जिंदा नहीं रह सकेंगी। इसने मुस्कुराते हुए इन्हें अपने साथ लगाया, फिर ज़मान की जानिब मुतवज्जा हुआ। वो इसे ही देख रहे थे, बेयकीनी से। वो खामोशी से जानकर इनके ऐन सामने आ बैठा, घुटनों के बल छोटे वली की तरह। फिर इनका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर अकीदत से चूमा और आंखों से लगाया। ज़मान की आंखें न जाने क्यों भीग गई थीं। तो तुम जा रहे हो? वो सवाल नहीं था, जवाब था, खालिस जवाब। इसका सर झुक गया, गले में शायद कुछ अटकने लगा था। फिर मुस्कुराकर चेहरा उठाया। वो दुखी दिल के साथ इसे ही देख रहे थे। जी सरदार बाबा। क्यों वली? हाँ, अब के इन्होंने सवाल किया था। अपनी बेटी की तरह हमेशा से मुश्किल सवालात किया करते थे वो। मैं मजीद इस सारी जिल्लत को बर्दाश्त करने की सिकत खुद में नहीं पाता सरदार बाबा। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, मेरी शिनाख्त से मुतल्लिक मुझे जिल्लत का निशाना ना बनाता हो। मैं इस माहौल से उकता गया हूँ, मैं थक गया हूँ। इसका लहजा वाकई बरसों का थकन ज़दा लगता था। ज़मान इसे चंद पल देखेगे। मुझे सिर्फ एक बात की तसल्ली करवा दो कि क्या तुम वहाँ खुश रहोगे? इनका अंदाजा इसे ठटका गया था और ये कैसा सवाल कर रहे थे वो खुश रहेगा? इसका जवाब तो इसके पास था ही नहीं। मैं खुश रहूं या नहीं, लेकिन मैं सुकून में रहूंगा सरदार बाबा।
मेरी ज़ात हर पल तंज और हकारत के निशाने पर नहीं होगी। ज़ुमान इसका खूबरू चेहरा खामोशी से देखे गए। वो जैसे इस चेहरे को याद करने की सही कर रहे थे, क्योंकि अब वो इनकी नज़रों से ओझल होने वाला था। इनके ऐसे देखने पर इसने शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता चेहरा बेसाख्ता झुकाया था। इन्होंने इसके बालों से भरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। जहाँ रहो खुश रहो, और हाँ, हम दो बूढ़ों को मत भूलना। ज़ुमानी इसके पीछे खामोशी से आंसू बहाती खड़ी रहीं। इसका सुकून तो इन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज था। फिर भला वो कैसे इसे रोक सकती थी? क्या इनके पास रोकने का कोई जवाब रह गया था? मैं कैसे भूल सकता हूँ आप दोनों को। मैं बीजान और आपकी मोहब्बत को सारी ज़िंदगी खुद में समेट कर रखना चाहता हूँ। ये मेरी मताए कुल है। मेरे पास किसी की मोहब्बत, किसी की दुआएं नहीं हैं। सरदार बाबा, वली अपने आप को तो भूल सकता है, लेकिन वो आप दोनों को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। इसकी नस्वारी आंखें नम नम सी लगती थीं और लहजे में तो गोया सारे जहान की इज्जत समट आई थी। अब बातें ही करते रहोगे या फिर मुझसे गले मिलकर मुझे ठंडक भी पहुंचाओगे? वो उठे तो वो भी साथ ही उठ खड़ा हुआ और फिर मुस्कुराते हुए इनके गले लग गया। मजबूती से अपने जानदार बाजू इनके गिर्द खींच दिए। सरदार बाबा ने आंखें मूंद ली थी। इनके सीने में वाकई ठंडक उतरने लगी थी। अरे जवान हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतनी मजबूती से गले लगाओगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी मेरी। इनकी शरारत पर वो हंसकर इनसे अलग हुआ। फिर भी जान की जानिब पलटा। वो आंसू साफ कर रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। शायद झल्ला ना हो, हर दफ़ा हंसाता है और आज देखो रुला दिया। लेकिन याद रख, शादी करनी ही पड़ेगी तुझे। वो हंसकर आगे बढ़ा और इनके गिर्द अपने बाजू फैला लिए। बीजान के बेतरा उबलते आंसुओं से उसकी कमीज़ भीगने लगी थी, मगर वो फिर भी खुश थी। इनका वली खुश रहेगा, इन्हें और चाहिए ही क्या था। कब तक जाओगे? सरदार बाबा के लिए ये लफ्ज़ बहुत तकलीफ़दा थे, बीबी की शादी के बाद, और इसके लिए ये लफ्ज़ अज़ियत थे। जाते जाते भी साथ दे रहे हो बरखुरदार। वो मुस्कुराए, वली नहीं मुस्कुरा सका। अच्छा अब जाओ, जाकर आराम करो, सुबह से मसरूफ़ हो। वो सर हिलाता अपने कमरे की जानिब बढ़ आया, मगर दो शहद रंग आँखों के पुरशिकवा से इर्तिकास पर इसने निगाहें लम्हे भर को जीनों की जानिब फेरी थी। और फिर वहाँ वो खड़ी थी, सुर्ख लिबास में, सारी कायनात की रोशनी खुद में सिमोए हुए। इसने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए। अमल इसे जाता हुआ देखती रही। वो तो हमेशा ही से पीछे खड़ी रह जाया करती थी। वो कमरे में आते ही बेदम सा सोफे पर गिरा था। आराम, इसे सारी ज़िंदगी आराम नहीं आना था। अमल की सांसें इसके साथ जुड़ी थी, इसे कैसे आराम आ सकता था? इसने खफीफ सी सुर्ख आंखों को मूंद कर सर सोफे की पुश से लगाया। अमल का नाजुक सरापा छम से इसके सामने आया था। इसने थक कर आंखें खोल दी। नस्वारी आंखों में बरसों की थकन पिन्हा थी। अमल ने अपने मन भर होते कदमों को ऊपर की जानिब मोड़ा। चिकने रुखसारों पर आंसू अब तक चमक रहे थे और वो इन्हें रोकने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। अनदेखी सी चहल पहल हर आन हवेली का अहाता किए हुए थी। वो मसरूफियत तले अपने अंदर पलते खौफनाक से नासूर को रोंद रहा था। वो इस मसरूफियत तले खुद को भी रोन देना चाहता था। अमल से इसका अब तक सामना नहीं हुआ था और इस पर इसने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि अगर वो सामने होती तो वो किसी काम का ना रहता। सुल्तान, ये लाइट्स का इंतज़ाम करवाओ। और अभी तक गेंदे के फूल नहीं पहुँचे। कमाल करते हो, शाम को मेहंदी है, हवेली सजानी और तमाम काम अधूरे हैं। वो सुल्तान को लताड़ता मुस्तकिल मुलाजमीन को हिदायत दे रहा था। मुसलसल एक हफ्ते से वो घन चक्कर बना हुआ था। शादी के तमाम इंतज़ामात इसी के ज़िम्मे थे और इस जिम्मेदारी में वो कोई कोताही, कोई कमी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वली, बीजान की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। वो काटन का सफ़ेद कुर्ता लिए इसकी जानिब बढ़ रही थी। ये मैं तेरे लिए सफ़ेद काटन का कुर्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा है बीजान, पहन लूँगा। इसने एक नज़र कुर्ते को देखा तक ना था। बीजान खफा हुई। खुद तो तुमने कुछ लेना नहीं था, सोचा मैं ही कुछ ले आऊँ। खुद से इतनी बेतवज्जही, इतनी लापरवाही दुरुस्त नहीं है वली, अपना ख्याल रखा कर। इनके लहजे में फ़िक्र बोल रही थी। वो मुबहिम सा मुस्कुराया। अच्छा अब रखूँगा। अंदाज सरासर इन्हें बहलाने वाला था। अच्छे से खबर है मुझे कि तुमने कैसा ख्याल रखना है खुद का। मैं वाकई रखूँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो यकीन दिलाने के लिए क्या करूं?
यहीं रुक जाओ हमारे पास। बी जान ने इतना अचानक कहा कि इसकी मुस्कुराहट गायब होने में पल न लगा। मैं आता जाता रहूँगा बी जान, मगर मुझे तो तसल्ली नहीं होगी ना वली। इन बूढ़ी आंखों को तुझे देखने की आदत हो गई है। इनकी आवाज़ भीगने लगी थी। वली के दिल को कुछ हुआ। बी जान की नरम सी आगोश ने इसे हमेशा सख्त दुनिया में महफूज रखा था। वो कल रुखसती के वक्त हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला था और बी जान के लिए यही एहसास सुहाने रूह था कि इनका वली इनको छोड़कर जा रहा था। तो आपको भी ले चलूँगा। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, लेकिन फिर तेरे सरदार बाबा वो तन्हा हो जाएंगे, तो आप दोनों चलें और फिर हवेली पर भूत राज करेंगे। वो इनकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुराया था। तू जहाँ रहे खुश रहे। इन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं। वो सर झटककर दोबारा से कामों की जानिब मुतवज्जा होता मुड़ा ही था कि यकदम जर्द लिबास में कैद कांच सा वजूद इसे ठटका गया। अमल की पुरनम शिकवा करती आंखें इससे कलाम कर रही थीं। खामोश कलाम इसे जख्मी जख्मी कर रहा था। वो दम बखुद इसकी छेदती निगाहों को देखे गया। ऐसे मत करें वली, यूँ मुझे किसी के हवाले मत करें। आप मुझे किसको सौंप कर जा रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं वली? इसे अपने कदमों पर खड़ा होना अजाब लग रहा था। इन आँखों की बोली इतनी जालिम होगी, इसका अंदाज़ा इसे आज हुआ था, इसी पल हुआ था। मैं तो कांच से बनी हूँ, मुझे किरची किरची होने से बचा लें वली। देखें, मैं मर रही हूँ, मैं मर जाऊँगी वली। इसने कभी खामोशी को यूं चिल्लाते नहीं सुना था, मगर आज ये खामोशी इसके अंदर बाहर को खामोश कर गई थी। वो ज़्यादा देर ना रुकी, बस एक आखिरी ज़ख्मी निगाह इस पर डाली और इसको ज़ख्म ज़ख्म कर दिया। वली ने जब से आंखें बंद की, जैसे ताज़ा ताज़ा लगे ज़ख्म को सहने की हिम्मत मुज्तमा की हो। रात मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। सिवाय दो नफूस के हर दिल खुश था, चहक रहा था। रात थक हार कर जब सब अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े तो अमल ने थके थकाए से कदम छत की जानिब मोड़े। नींद तो वैसे भी सारी रात नहीं आनी थी। इससे अच्छा था कि वो खुली हवा में चमकते चांद को देखकर खुद के अंदर पलती तकलीफ को कम कर लेती, तकलीफ जो अब सारी ज़िंदगी इसके साथ रहनी थी। इसने छत का दरवाज़ा खोला और टेरेस की जानिब चली आई। मध्यम सी ठंडी हवा और दमकते चांद ने जैसे चुपके से इसके सारे आंसू समेट लिए थे। इसका दुपट्टा कंधे से ढलक कर हाथों पर आ गिरा। स्याह हाफ बंदे बाल एक जानिब को उड़ने लगे। यकायक इसे किसी के कदमों की भारी चाप सुनाई दी थी। अमल जम सी गई। वो इस चाप को पहचानती थी। हाँ, वो इसे कैसे भूल सकती थी भला। वो इससे ज़रा फासले पर आ खड़ा हुआ था। आस्तीन ने हस्बे आदत कोनियों तक मोड़े। रात के इस पैर शाल से बेनियाज अंधेरे में भी वो देवमालाई से किरदारों की अक्कासी करता हुआ, हाँ वो वही तो था। इसने इसे देखने के लिए गर्दन नहीं मोड़ी, खामोशी से चांद को देखे गई। वो भी चेहरा उठाए चांद ही को देख रहा था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछेंगी? खुश तो हैं मुझे अजियत देकर, और क्या पूछूं आपसे। वो इसके तंज पर मुस्कुराया था। चांद का सहर हर जानिब बिखरने लगा, हर शय पर चढ़ने लगा, हर वजूद को ढांपने लगा। मैं आपको अजियत देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन अजियत दे सकते हैं। इसके जवाबात बहुत बरजिस्ता, बहुत दिल गिरफ्ता थे। क्या कभी तुमने किसी को इतनी बरजिस्तगी से जवाब देते देखा है? इसने देखा था, इसने अमल को देखा था। क्या अजियत दी है? मेरे अंदर अपनी आदत डाली है, क्या किसी अजियत से कम है ये? मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की जानिब नहीं देखा था। चेहरा उठाए वो दोनों चांद देख रहे थे। दूर से देखने पर लगता था गोया वो हम कलामी कर रहे हों। आप माफ़ नहीं करेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भी तो मुश्किल में हूँ, आप भी रहें। जालिम शहजादियों के नक्शे कदम पर गामजन हैं शायद आप। चांद को देखता लड़का मुस्कुराया था। अमल की आंख से आंसू फिसलकर कनपट्टी में जज्ब हुआ। जी बिल्कुल, बल्कि बहुत पहले मुझे इनकी रविश इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। आपके साथ नरमी बरत कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। गुलाम हाजिर है, जो सज़ा देनी है दे दें। इसने पहली दफ़ा चेहरा इसकी जानिब फेरा था। चांद की चांदनी में इसे अमल के रुखसारों पर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। आपकी सज़ा यही है कि मैं नफ़रत करने लगी हूँ आपसे। वो हंसा था, अजीब आंसुओं से नम होती हंसी थी वो।
अमल के आंसू तेजी के साथ गिरने लगे थे। बहुत जालिम हैं आप से कम हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बीबी, मैं आज भी आखिर तक आपके काबिल नहीं हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे नफ़रत करें मैं इसी काबिल हूँ, और आप खुशकिस्मत है कि मुझसे नफ़रत कर पा रही हैं। मुझे देखें, मैं तो कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकूँगा। मुझे तो सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करते गुजारनी है। अमल के आंसू बहुत तेज़ी के साथ लुढ़क रहे थे। इसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर इसकी जानिब बढ़ाया। वो इसके लिए इतना ही कर सकता था, इससे आगे की इसको इजाज़त नहीं थी। अमल ने इसके हाथ से रुमाल लिया और खामोशी से बहते आंसुओं को इसमें जज्ब किया। वली आहिस्ता से पीछे हटा था। अमल ने इसे मुड़कर नहीं देखा, वो इसे जाते हुए नहीं देख सकी। वो मुड़ा और तेज़ी के साथ जीने फलांगता उतरता चला गया, और अमल वो सारी रात टेरेस से लगकर बैठी रोती रही। वो आज आखिरी दफ़ा एक साथ ही सारा रो लेना चाहती थी। हमेशा से दो नफूस की मोहब्बत का गवाह चांद आज भी इतना ही खामोश था जितना हमेशा रहा करता था। सुबह बहुत हफ्ज़दा सी तुलू हुई थी। माहौल में अबर आलूद मौसम की घुटन रची बसी थी। आज दोपहर निकाह था और फिर वली की इस हवेली से हमेशा के लिए जुदाई थी। वो स्पाट सा तेज़ी से कामों को सर अंजाम देता अपने अंदर मची तोड़ फोड़ को बामुश्किल ढांप रहा था। वो इन कामों में खुद को भी ख़त्म कर लेना चाहता था। निकाह ख्वाह अमल के कमरे की जानिब बढ़ा तो उसके कदम बस एक पल को लरस कर रह गए। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। वो इसकी सांसों में कतरा कतरा तहलील होने लगी थी। अमल ने ज़ोर से दुपट्टा मुट्ठी में भींचा। वली का सांस रुकने लगा था। इसकी कोई रूह भींच रहा था। वली, तुम ठीक तो हो ना? बीजान परेशान हो गई थी। इसने इस बात में सर हिलाकर इन्हें तसल्ली दी और फिर इनसे माजरत करता अपने कमरे की जानिब दौड़ा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में इसका कसरती जिस्म नुमायां था। वो लोगों का धकेलता दरमियान में रास्ता बनाता भाग रहा था। अमल का जिस्म बर्फ़ हो रहा था। इसके लब सफ़ेद पड़ रहे थे, निगाहें पथरा रही थीं। वली ने कंधे पर धरी कत्थई शाल का एक सिरा ज़ोर से दूसरे कंधे पर डाला। निकाह ख्वाह मामूल की कार्रवाई कर रहा था। वो धुआं चेहरा लिए निकाह नामे को देखे गई। इसकी उंगलियां बेजान हो रही थीं। हाथ में फंसा कलम लरज रहा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वली आस्तीने मोड़ता वाश बेसिन पर झुका, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कबूल है, लरजती आवाज़। वली ने बेसिन के किनारों को ज़ोर से थामा। कबूल है। अमल की आंखें मुतवातर बहने लगी थी। वली की आंख से आंसू टूट कर गिरा। इसे अपनी ज़िंदगी की सारी जिल्लत याद आ रही थी। इसे हर दर्द से मिली धुतकार, हर दरवाजे से पड़ी गालियां याद आ रही थी। इसे सब याद आ रहा था। गहरे गहरे सांस लेकर इसने अंदर मची तोड़ फोड़ को संभालने की कोशिश की। निस्वारी आंखें सुर्ख हो रही थीं। कबूल है। इसने तौलिए से चेहरा खुश किया, सामान समेटा और खचाखच भरी हवेली से निकल आया। अब के स्पार्ट सा ड्राइव करता वो आगे ही आगे बढ़ रहा था। इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। इसने सफ़ेद हवेली और इसके मकीनों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसने अपना आप भी कहीं वहीं पीछे छोड़ दिया था। ज़मान ने धूल उड़ाती इसकी गाड़ी को जाते देखा और दर्द से मुस्कुरा दिए। कत्ल के बाद निगार बेगम जो इसके इस तरह आनन फानन आने पर अभी संभली ही नहीं थी, वो इनको हमन्नक बना छोड़कर जा भी चुका था। इन्होंने बामुश्किल हुसैन के लागर वजूद को सीधा किया और फिर दुपट्टे से आंसू पोंछती बाहर को भागी। वो जिस हालत में गया था इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। इसकी हालत बहुत बिखरी हुई, बहुत टूटी हुई थी। यूं लगता था जैसे कोई तनोमन सा मर्द आगाही के एक ही झटके से ढह गया हो। बाहर भागते हुए इनका दिल लर्ज रहा था और जिस्म पसीने में शराबोर था। हर मसाम से गोया पसीने की बूंदें फूटकर बह निकली थी। वो इनका सगा बेटा नहीं था, लेकिन वो इन्हें सगे बेटों जैसा ही अजीज था। ये इन दिनों की बात थी कि जब निगार की गोद बिल्कुल खाली थी, उजाड़ और खामोश। तब एक दिन हुसैन ने इनकी आगोश में हाशिम ला थमाया था और कहा भी था कि आज से वो इनका बेटा है, लेकिन इन्होंने निगार को सारी ज़िंदगी ये नहीं बताया कि वो इन्हीं का नाजायज़ बेटा था। वो अक्सर हैरान होकर हुसैन से कहती भी थी कि हाशिम बिल्कुल इनका परतू लगता था, बिल्कुल इनकी सी शख्सियत लिए, इन्हीं की तरह का कद काट लिए, ऊंचा लंबा और स्याह चमकती आंखों वाला ज़िरक सा हाशिम। लेकिन वो इनकी बात को हर दफ़ा का इत्तफाक कहकर टाल दिया करते थे। बाहर भागते हुए निगार बेगम का पसीने में शराबूर जिस्म होले होले कांप भी रहा था।
वो इनका सगा बेटा नहीं था, लेकिन वो इनके लिए सगों से भी बढ़कर था। इन्हें ये जान लेने के बाद भी इससे घिन नहीं आई थी कि वो नाजायज़ था, वो एक ऐसी औलाद था जो हराम की तस्कीन से वजूद में आई थी। ये सब जान लेने के बाद भी इनके अंदर इससे नफ़रत का कोई रंग न जागा। किसी तनफ़ुर, किसी तज़ीक़ और किसी कमतरी ने इनका दिल ऐसे नहीं जकड़ा था जैसे हाशिम की टूटी बिखरी हालत ने जकड़ लिया था। और रहा वो वली, तो इसका इंकशाफ भी इन पर आज ही हो गया था कि वो भी इनके शोहर ही का बेटा था। हुसैन की एक और नाजायज़ औलाद, एक ऐसी औलाद जिससे निगार ने हमेशा इसकी पैदाइश की वजह से नफ़रत की थी। इसके वजूद से हमेशा घिन सिर्फ इसीलिए खाई थी क्योंकि वह इनके मुकाबले पर नहीं था, वह इनके मुकाबले पर कभी आ ही नहीं सकता था। वो एक कमतर और जलील इंसान था क्योंकि इसके माँ बाप ने इसको पैदा ही जिल्लत के साथ किया था। लेकिन हाशिम, आज इन्हीं का हाशिम इस सांचे में पूरा उतर रहा था जो सांचा इन्होंने वली के लिए तैयार कर रखा था। और ये कुदरत का आखिर कैसा इंतकाम था, ये इस कहानी का कौन सा वर्क था कि जिसके उलटने पर दिल इस कदर कट जाया करता था। आखिर ये सब क्या था? लोग कहा करते हैं कि कहानियाँ आगाज़ के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊं, कहानियाँ अंजाम के साथ नथी होती हैं। कहानियों का वजूद, इनकी बका और इनके सर्वाइवल हमेशा अंजाम के साथ जुड़ा होता है। वो औरत जिसने बरसों से हाशिम की तरबियत ही ऐसी की थी कि जिसमें इंसानियत का कोई शायबा तक ना था, जिसमें अपने हलाल और बरतर होने का घमंड और तकब्बर कूट कूट कर भरते इन्हें अंदाज़ा ना था कि एक दिन, हाँ एक दिन हकीकत का आईना इस तरह का अक्स भी दिखाएगा, इस तरह का रंग भी दिखाएगा। अपने बेतरा उबलते आंसू कांपते हाथों से पहुँचते इनका दिल हर आन समुंदर की गहरी और लिपटती लहरों में डूब डूब कर उभर रहा था। हवेली के दाखिली दरवाजे से कदावर गेट की जानिब जुनूनी से अंदाज में भागते हुए इन्हें इतना ज़्यादा था ही नहीं कि इनका हाशिम, हाँ इनका हाशिम इनसे खो चुका है, इनके हाथों से जा चुका है। किसी बहती नहर के मुंह और पानी में इसकी लाश आगे ही आगे बहती जा रही है, एक ऐसी लाश जो इंतहाई नजस और बदबूदार होती है। वली इसी वक्त सरदार बाबा और बीजान के सवालों पर इन्हें मुतमिन करता वापस अपने कमरे में आया था, मगर लगता था कि कदमों से किसी ने जान सलब कर ली हो। दम से सोफे पर बैठते वो इस परिजादी के बारे में सोच रहा था कि जिसकी खामोश आंखें इसके अंदर कई दिनों तक की बातें छोड़ जाया करती थी। अगर जो वो सरदार बाबा को एक दफ़ा भी इसके रिश्ते पर गैर मुतमईन या परेशान देखता तो वह ज़रूर इनका हाथ रोकता या इन्हें इस शादी से मना करता। लेकिन मसला तो यही था कि इसने ज़ुबान को कभी इस रिश्ते पर कोई इतराज़ करते देखा ही नहीं था। आखिर वो खुद से इतराज़ करता भी तो किस बात पर? नफीस और इस हवेली के हर लड़के के किरदार तो इसे मालूम था। सरदार बाबा इन सब बातों से बेखबर नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो इन सब बातों से इतने बाखबर भी नहीं थे कि जिनसे वली ने हमेशा इनके सामने निगाह चुराई थी। अगर जो वो इन्हें बता देता कि नफीस भी इन्हीं जहन्नमी रातों का मुसाफिर है कि जिसका बख्तियार और हाशिम आदी था, तो क्या वो अपनी इस शफाफ आईना सी नाजुक बेटी का निकाह इससे होने देते? इस सब में वो कुछ नहीं कर सकता था। बख्तियार और निसार नफीस की हकीकत से वाकिफ होने के बाद भी अपनी बहन की शादी हंसी खुशी इस लफंगे से कर रहे थे, तो ये मुश्किल ही था कि इसके लाख दलाइल पर भी ये शादी रुक सकती। इसीलिए इसने बहती लहरों के साथ बहने का फैसला कर लिया। अमल जो इसकी वजह से इस सारे अजाब, दुखों और जिल्लत का शिकार हुई थी, बेहतर था कि अब वो इसकी ज़िंदगी से कहीं बहुत दूर चला जाता। और इस दिन किचन में इसे बिलक बिलक कर रोते देखकर इसने यही फैसला किया था कि अब वो इसके सामना किसी सूरत भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वो इसका इम्तिहान लेगा तो शायद इसका गुनहगार हो जाएगा, जो वो किसी भी सूरत होना नहीं चाहता था। वो यही चाहता था कि जब यहाँ से जाए तो हल्के कंधे और हल्के वजूद के साथ जाए। वो इसकी ज़िंदगी को किसी भी तरह अपनी मौजूदगी के बायस तमाशा नहीं बनाना चाहता था। सो इसने भी वही फैसला कर ही लिया जो इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, यहाँ से जाने का फैसला, कभी यहाँ ना लौटने का फैसला। सरदार बाबा और बीजान को इसने कह दिया था कि वो आता जाता रहेगा, इनसे राब्ते में रहेगा, वो इन्हें कभी नहीं भूलेगा। लेकिन दर हकीकत वो ना तो इनसे राब्ता रखने वाला था, ना ही आने जाने वाला था, और ना ही वो सरदार बाबा, बीजान और अमल के अलावा किसी को याद रखना चाहता था। सो बस अब यहाँ से चले जाने ही में आफियत थी, इज़्ज़त थी और सुकून भी था शायद।
ہوپفلی آپ نے آج کی ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی, اور اسٹوری آپ کو کیسے لگ رہی ہے, ناول آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں, کامنٹ میں اپنی قیمتی آرا کا اظہار کریں. I'll be waiting for you guys. اور کوئی بھی ناول کی ریکویسٹ نہیں, حکم آپ لوگ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی پسند کا ناول اپلوڈ کریں. سو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.